Good evening and welcome everyone. Welcome to Happy Candles Investment Channel's new initiative where we are trying to, where we are trying to quantify or where we are trying to measure how a stock is doing, and we'll designate out of 100 marks to a stock. So the things that we are going to discuss today will be important aspects to look at when you buy a stock, and we will introduce thereafter you to the Happy Candles number and how we have inculcated the important aspects of your stock selection criteria, and we have tried to quantify and give a measurable value to everything, and thus we derive a number. We will also discuss at the end of towards the end of this program the current rating or the current Happy Candles number or the current Happy Candles HCN that will marks that a stock is carrying in all the Nifty 50 stocks. Then as usual, in the last 15-20 minutes, we will try to have a question and answer session where we'll try to answer question and we'll try to take questions, live questions about some stocks that you might be having, or we can also try to take question and answers on the formula, the Happy Candles number that we have discussed about the stocks. So starting right away into the presentation, as I told you, we'll discuss important aspects that a person needs to look at when selecting a stock, and then we'll introduce the Happy Candles number. So now, when we think of investment, what are the most important things? What is the most important thing that is to be done? So the most important thing that is to be done is balancing the risk and with safety. Okay, every move that a market is going to make, every move that a stock is going to make, every move that any of your investment, whether it is stocks or whether it is something else that you are going to do, there is a sort of risk involved. Guys, can you all mute? ओके, तो थोड़ा सा रिस्क तो क्या है कि इन्वॉल्व होता ही है जब हम कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि आप देखो कि आप अगर बैंक में एक एफडी भी करते हैं तो एफडी में भी आजकल लिखा होता है, राइट, कि भाई आजकल नहीं, काफी टाइम से लिखा होता है कि ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द एफडी इज इंश्योर्ड, बाकी पूरा हम लोग नहीं दे पाएंगे। ऐसे कोई नेशनलाइज बैंक में इतना बड़ा रिस्क नहीं रहता है, बट जो एश्योरेंस होता है थोड़ा सा, भले 99.9% कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट कहने का मतलब है कि थोड़ा सा रिस्क तो कहीं ना कहीं हर एक जगह इन्वॉल्व रहता ही है। तो ये रिस्क जो है, आवर ट्राई इज टू मिनिमाइज द रिस्क व्हेन वी इन्वेस्ट मनी। तो क्या अगर जो हमारा रिस्क हो वो हम मिनिमाइज कर सके और जो हमारे रिटर्न्स हो उसको मैक्सिमाइज कर सके, दिस इज द ओनली थिंग दैट वी लुक एट व्हेन वी ट्राई टू इन्वेस्ट अवर मनी। ठीक है, तो वही हम करते हैं कि भाई रिस्क जितना कम हो सके उतना अच्छा है, रिटर्न्स जितने ज्यादा मिल सके उतना अच्छा है। तो रिस्क कम करने के लिए हमको ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने पड़ेंगे, वी हैव टू सिलेक्ट सच स्टॉक्स व्हिच हैव अ गुड लेयर ऑफ सेफ्टी बेल्ट अराउंड देम, व्हिच हैव अ गुड लेयर ऑफ mechanism which protects the company or which protects the stock during the adverse times of the market or during the adverse time of the economy, right? तो ऐसे क्या फैक्टर हैं जिसको देखने से, जिसको स्टडी करने से, जिसका पूरा ध्यान रखने से
हमारा रिस्क जो है वो कम होता है और हमारी सेफ्टी जो है वो बढ़ जाती है। तो सम ऑफ द फैक्टर्स, बिफोर वी डिस्कस सम ऑफ द फैक्टर्स अबाउट अबाउट द इन्वेस्टमेंट, उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे हैप्पी कैंडल्स इन्वेस्टमेंट के बारे में। हैप्पी कैंडल्स इन्वेस्टमेंट जो है, इट इज एज यू नो करीब 1.5 साल पहले शुरू हुई एक फर्म है। यहाँ पे हम शेर खान के सब ब्रोकर हैं, या वी आर फ्रेंचाइजी ऑफ शेर खान। वी हेल्प ओपन आवर कस्टमर्स डीमैट अकाउंट इन शेर खान, जो कि फ्री ऑफ चार्ज डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट खुलने का कोई चार्ज नहीं है। और अगर आपके पास शेर खान में हमारी फ्रेंचाइजी में लिया हुआ डीमैट अकाउंट है, तो शेर खान तो जो फैसिलिटी देता है वो देता ही है। शेर खान के क्लासरूम होते हैं, शेर खान के कॉल होते हैं, शेर खान के न्यूज़लेटर आते रहते हैं, वो तो है ही। बट एडिशनली यू गाइस गेट अ चांस टू बी पार्ट ऑफ हैप्पी कैंडल्स स्पेशल ग्रुप फॉर फ्री फॉर लाइफ टाइम, राइट। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हैप्पी कैंडल स्पेशल ग्रुप क्या है? तो हैप्पी कैंडल स्पेशल ग्रुप है एक ग्रुप जिसमें हम काफी सारी एजुकेशनल कॉल देते हैं, काफी सारी एजुकेशन की बात करते हैं, काफी सारे ऐसे डेटा देते हैं जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच वी ट्राई टू हेल्प यू विद योर हेल्थ विद योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। तो ओपन अ डीमैट अकाउंट विद अस, फ्री ऑफ चार्ज डीमैट अकाउंट, जिसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी पहले साल का कुछ इतना है नहीं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स एएमसी सिर्फ 400 रुपए है, तो इतना ज्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, कुछ खर्चा नहीं है। इनफैक्ट सेकेंड ईयर से साल का 400 रुपया है। और आपको जो फैसिलिटी मिलती है उसके सामने वो बहुत बढ़िया है कि आपको हैप्पी कैंडल्स स्पेशल ग्रुप में लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है, जिसमें हम कई जो बुकलेट्स होती हैं वो भी एक्सक्लूसिव होती हैं सिर्फ हैप्पी कैंडल्स स्पेशल ग्रुप के लिए। बहुत सारे कॉल जो होते हैं, नॉर्मल आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के मेंबर हैं तो दिन में आपको 1-2 कॉल मिलते हैं। तो नंबर ऑफ कॉल्स जो स्पेशल ग्रुप में दिए जाते हैं वो मेनी टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि रफली अगर 2 कॉल दिए जाते हैं नॉर्मल ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में, तो उसके सामने स्पेशल ग्रुप में 7 से 8 कॉल या 6 से 7 कॉल दिए जाते हैं। और उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है वो भी हर 15 दिन पे हम रिव्यू करके एक कंसोलिडेटेड शीट देते हैं स्पेशल ग्रुप के मेंबर्स को, जिसमें 15 दिन पहले ड्यूरिंग लास्ट 15 डेज जो आपने स्टॉक लिए, अब उनका क्या करना है, क्या अगर वो बढ़ गए तो उनका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, अगर वो कम हो गए तो आपको कौन से स्टॉप लॉस का ध्यान रखनी है, इसके बारे में भी एक पूरी जानकारी दी जाती है। वो कॉल को अपडेट किया जाता है। कुछ कॉल ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो गए तो उसको पकड़ के नहीं रखो, स्टॉप लॉस हो गया है, ये मतलब पूरा रिमाइंडर पूरा फॉलोअप भी दिया जाता है। ये जो फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ग्रुप के लिए है। दिस फैसिलिटी ओनली फॉर स्पेशल ग्रुप मेंबर्स। इन एडिशन टू दैट जो कुछ है हमारी हैप्पी कैंडल CIF कस्टमर इंट्रिंसिक फाइनेंशियल सर्विस है, फिर स्पेशल एजुकेशन सर्विस जो है उसके बारे में तो हमने बात की ही है। और उसके अलावा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और जो नेक्स्ट बैच जब होगा एजुकेशनल तो उसमें भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। स्पेशल ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको 50% डिस्काउंट सीधा सीधा मिल जाता है फॉर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं हैप्पी कैंडल्स इन्वेस्टमेंट के स्पेशल ग्रुप के मेंबर बनने की। स्पेशल ग्रुप में बिना इसके भी मेंबर बना जा सकता है। उसके लिए आप कैसे और क्या तरीके हैं स्पेशल ग्रुप में मेंबरशिप के, आप लोग हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर्स इधर दिए गए हैं, वो दोनों में से कोई भी एक नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, देन वी विल ट्राई टू इन्फॉर्म यू more about our special group and inform you more about the facilities that we give at Happy Candles Investment। जो हमारी और क्या क्या सर्विसेज हैं, म्यूचुअल फंड में आपको हेल्प है, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में अगर आपको हेल्प चाहिए, या कुछ भी इस तरह का आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए हैप्पी कैंडल्स इन्वेस्टमेंट कैन बी अ हेल्पफुल
सोर्स, और हम लोग आपको वी कैन हेल्प यू इन मेनी वेज for your investment requirements. Now coming back to the subject, okay, what are the how to manage risk in your investment? सेफ्टी के फीचर्स, सेफ्टी कैसे बढ़ाई जाए अपने इन्वेस्टमेंट की, रिस्क कैसे कम किया जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ चीजें स्टडी करनी होंगी वो कंपनी के बारे में, जैसे कि उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, कि कितने कैश रिजर्व है एक कंपनी के पास, कितना वो कंपनी के पास उसके ईयर ऑन ईयर उनके जो रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, उसमें कैसे ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट कैसे देते हैं, डेप्रिसिएशन मशीनरी का क्या हो रहा है। So there are a lot of factors which you need to study to gauge the financial strength of the company. ये कहाँ से मिलेगा आपको? तो इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे, या फिर कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि moneycontrol.com है या ट्रेंडलाइन है, उस पे से भी आपको काफी डेटा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी। वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी क्या है कि जो कंपनी का एक स्टॉक का प्राइस होता है, अ कंपनी हैज अ प्राइस, स्टॉक ऑफ द कंपनी इज ट्रेडिंग एट एक्स प्राइस। तो ये जो प्राइस है, गुजराती में बोलते हैं कि भाव भगवान छे, तो उसका मतलब यह है कि एक स्टॉक का जो प्राइस होता है वो उस दिन तक का जो भी इंफॉर्मेशन वो कंपनी के बारे में अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन का एक सम होता है, वो उस कंपनी का उस दिन का उसके शेयर का प्राइस होता है। नाउ वो जो कंपनी का प्राइस होता है उसको हम कंपेयर करते हैं वो कंपनी की अर्निंग के साथ। तो कंपनी की अर्निंग, सपोज अर्निंग पर शेयर जो है सपोज वाई रुपीज है और कंपनी की शेयर की प्राइस एक्स रुपीज है, तो उसका जो रेशियो बनता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कंपनी के शेयर की प्राइस है वो कितने टाइम्स उसके अर्निंग्स के मुकाबले वो जो ट्रेड कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग, जिसपे से कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो वैल्यूएशन मॉडरेट है या रीजनेबल है या कम है, ये स्टडी करने के बाद आपको, और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। उसमें बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें प्राइस टू अर्निंग के बारे में, जिसमें एक्सपोनेंशियल एवरेजेस के बारे में, जिसमें ट्रेंड के बारे में, जिसमें निफ्टी के ओवरऑल फेज के बारे में, ब्रेकआउट्स के बारे में काफी कुछ बातें की गई हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, काफी सारे वीडियो अंदर देखेंगे, तो यू विल नो एंड यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल कम टू नो अबाउट लॉट ऑफ दीज थिंग्स। अभी तो हम बहुत संक्षिप्त में या बहुत इन वन और टू लाइन्स वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन these things, but these things are explained in detail in some of our past webinars, जो कि आप देख सकते हैं हमारी YouTube चैनल पे। तो बाद में बात आती है वैल्यूएशंस की, बात आई, वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद जो बात आती है वो है मोमेंटम के बारे में, स्टॉक के। तो मोमेंटम के बारे में, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कंपनी कितना भी अच्छा कर रही हो, कंपनी कितने भी अच्छे रिजल्ट्स दे रही हो, बट ऑन टेक्निकल स्केल या बट ऑन चार्ट्स एक कंपनी के स्टॉक में मोमेंटम नहीं आता है ना, तो तब तक वो स्टॉक में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होने के कम चांस होते हैं। फॉर एग्जांपल, पिछली बार आपने देखा कि एक रैली आई थी मार्केट में जहां पे हम 18,600 तक चले गए थे, राइट। उस टाइम पे हर 2 दिन पे, हर एक दिन पे जब भी एक 500, 200, 300 पॉइंट का जंप आता था, तब लोग आईटीसी का मजाक उड़ाते थे, आईटीसी के मीम्स बनाते थे।
आईटीसी के बारे में मतलब जोक्स की भरमार, जितने शायद कोई पॉलिटिशियन पे या कोई किस पे जोक नहीं बने होंगे, उतने जोक आदरणीय पॉलिटिशियन पे कोई जोक नहीं बने होंगे, उतने जोक आईटीसी पे बनते थे, राइट। अब आप देखिए कि वो, क्योंकि आईटीसी ने पिछली रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, कोई कई सारे 200 रुपए के स्टॉक 2000 5000 तक चले गए, कई स्टॉक 200 रुपए के 3000 तक चले गए, लेकिन आईटीसी भाई साहब जो है वो 200 से 250 भी नहीं जा पाए थे। और अभी अगर आप देखो तो जब मार्केट पूरी डाउन जा रही है, तो आईटीसी एक ऐसी कंपनी है जिसके स्टॉक दिन ब दिन 5 रुपया 2 रुपया 10 रुपया करके ऊपर 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 ही जा रहा है। तो ये होता है एक स्टॉक का मोमेंटम। दिस इज वाई मोमेंटम, पिकिंग अ मोमेंटम स्टॉक इज इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल तो स्टडी करना ही है, फंडामेंटल्स तो देखना ही है, लेकिन उसके साथ जो है हमको उसके टेक्निकल्स भी देखना इसीलिए जरूरी हो जाता है। तो अभी जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो जो आईटीसी है वो अप ट्रेंड में है, वो मोमेंटम में है। तो इस तरह से मोमेंटम जो होता है स्टॉक का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर डेप्ट एंड प्लेजिंग ऑफ अ कंपनी। अभी कंपनी कितना भी अच्छा काम कर रही हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे हो, कंपनी का रिजल्ट कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर कंपनी भारी कर्जे में है, कंपनी के मालिकों ने अपने शेयर गिरवी रखे हुए हैं, तो थोड़ा हमको संभलना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, राइट। क्योंकि इसमें क्या होता है कि उधारी का चक्कर जो होता है वो कभी ना कभी एक कंपनी को, हमने देखा है पास्ट में भी कि ले डूबता है, राइट। जैसे कि हमने सुजलॉन देखा एक जमाने के सुपरस्टार, अबान ऑफशोर देखा, सिंटेक्स देखा, ये सब कंपनियां नंबर 1 कंपनी थी एक टाइम पे, निफ्टी 50 की कुछ तो इनमें से कंपनी थी एक टाइम पे, लेकिन आज उनका प्राइस कचरा हो गया, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपये में ये लोग ट्रेड करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ हेवी डेट दैट दे हैव टेकन एंड हाई प्लेजिंग दैट प्रमोटर्स ऑफ दोज कंपनीज हैड डन। So these are the things. Vishal bhai, just one question. As you were discussing about the owners of the company has taken, you can say the loan or probably has put it into over there. So how to find that? Where to find that कि owner ने अपना शेयर जो है गिरवी रखा हुआ है? How to find that? कहाँ पे पता लगेगा वो? आप नॉर्मल जो मनी कंट्रोल है या ट्रेंड लाइन है, उधर आप देखो, वो ट्रेंड लाइन का आप ये खोलोगे और उसमें कोई भी स्टॉक डालोगे ना, तो उसके नीचे उसका स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट एनालिसिस में 90.9% आप देखो तो कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो से पता चलेगा, या उसमें स्वॉट एनालिसिस में लिखा भी होता है कि भाई इट इज अ लो डेप्ट कंपनी, इट इज अ नो डेप्ट कंपनी, डेप्ट डिक्रीज हो रहा है, जो प्लेजिंग है वो भी डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है ये कंपनी का, इस पे से पता चलता है। फिर उसी में फर्दर आप डाउन जाओगे, थोड़ा फाइनेंशियल डेटा स्क्रॉल करोगे, उसमें आप डाउन जाओगे तो आपको पता चलेगा कि उधर प्रमोटर की होल्डिंग, फिर एफआईआई की होल्डिंग, फिर डीआईआई की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन होती है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसमें आप वो चेक करोगे ना, तो यू विल कम टू नो दैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये प्रमोटर एक कंपनी में स्टेक बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, एफआईआई वो कंपनी में स्टेक बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, म्यूचुअल फंड उस कंपनी में स्टेक बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, ये सब डेटा अवेलेबल होता है। हाँ, ये सब डेटा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है कि हैप्पी कैंडल्स आपके लिए आपको ये सब डेटा ढूंढ के, ये सब डेटा पे काम करके, ये सब डेटा की स्क्रूटिनी करके आपको एक स्पून फीडिंग करता है, जो कई बार आपको स्पेशल ग्रुप में या कभी कभी फ्री ग्रुप में भी मिल जाती है। तो ये आपको बेनिफिट रहता है बाय ज्वाइनिंग पीपल लाइक अस, पीपल कंपनीज लाइक हैप्पी कैंडल्स, क्योंकि हम लोग जो है काफी टाइम, काफी हमारे दिन के, आप तो सब लोग हैं ही अपने ग्रुप्स में, तो यू माइट बी नोइंग कि हमारा रिसर्च कितने बजे तक चलता रहता है, कितनी हम लोग छुट्टी लेते हैं, कितने बजे तक रात को हम बैठ बैठ के स्टडी कर करके
प्रॉफिट एंड लॉस कंपनियों का देख देख के डेटा निकालते हैं और आपके सामने रखते हैं। तो yes, this data is available on financial websites, financials of the companies when you check. हो सकता है कुछ डेटा जो है आपको यहाँ पे फ्री उसमें नहीं मिलेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो जो मनी कंट्रोल या ट्रेंड लाइन है कुछ पैसे देके, तो वहां पे आपको 101% मिल जाना चाहिए। और फिर भी कभी कोई कंपनी का, किसी कंपनी का, स्पेसिफिक कंपनी का डेटा नहीं मिलता है आपको, तो आप हमको बताना, वी विल ट्राई टू फाइंड इट एंड हेल्प यू विद द सेम। अगर कहीं भी आपको कोई कंपनी का डेटा नहीं मिल रहा है ढूंढने पे भी, तो आप बताना, तो मैं आपको हेल्प करूंगा ढूंढने में, या मैं या हमारी टीम का कोई भी मेंबर आपको हेल्प करेगा, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द डेटा फॉर यू। Is that fine? Yes, sir. Yes. Okay. Now going further, another very important thing is cash flow of the company. बराबर? तो कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी का जो है बहुत सारी रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, कंपनी के बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं, डेब्ट, इक्विटी और ये सब भी काफी अच्छे हो रहे हैं, बट स्टिल द कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट कैश फ्लो। तो क्योंकि कंपनी क्योंकि वो उधारी में माल देते हैं, उनका जो ये होता है, वो जहां पे अपने प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, सप्लाई करते हैं, वहां पे उनके पास कैश क्रंच हो जाती है। जो मेरा एंड यूजर है उसके पास अगर कोई कैश क्रंच हो गई तो फिर मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो इवन दो माय प्रोडक्ट इज गुड, ऑन पेपर मैं बहुत प्रॉफिट कमा रहा हूं, लेकिन अगर मेरा पैसा ही नहीं आता है वापस, तो मेरे कैश फ्लो के इश्यू हो जाएंगे, और जब मेरे कैश फ्लो के इश्यू हो जाएंगे तो फिर वो मेरे बैलेंस शीट के लिए या मेरी कंपनी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि कई जो कंपनियां डेब्ट वाली कंपनियां होती हैं, लेकिन उसका कैश फ्लो इतना बढ़िया होता है, इतना बढ़िया होता है, इतना बढ़िया होता है कि उनको बहुत प्रीमियम प्राइस भी मिलता है, और वो डेब्ट के जो मायाजाल होता है उसमें से वो लोग बाहर भी निकल पाते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे अमेज़न, तो अमेज़न जो है, वो जो कंपनी है उसका डेब्ट इतना ज्यादा था, उसके इनिशियल स्टार्टिंग के फेजेस में इतना ज्यादा डेब्ट था, मतलब 100 टाइम्स से लेके 200 टाइम्स ऑफ इट्स सेल उसका डेब्ट हो गया था ऑन मेनी फेजेस ऑफ इट्स जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके सामने उसका जो कैश फ्लो था वो इतना जबरदस्त था कि कभी भी उसको अपने इंटरेस्ट का डिफॉल्ट नहीं करना पड़ता था, कभी भी उसके जो इंस्टॉलमेंट्स देने होते उसमें डिफॉल्ट नहीं करना पड़ता था। तो लोग और भी डेब्ट देते थे उसको, कम इंटरेस्ट पे भी डेब्ट देते थे कुछ लोग उनको, एंड कैश फ्लो फैंटास्टिक होने की वजह से अमेज़न और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, आप ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि वो डेब्ट और प्लेजिंग और ये सब में से भी बाहर आ पाई हैं, बिकॉज नॉट ओनली देयर प्रोडक्ट्स बट देयर कैश फ्लो, नॉट ओनली देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बट देयर कैश फ्लो वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। फिर दूसरी एक चीज जो हम देखते हैं कोई कंपनी के बारे में, वो होता है कि भाई वो डिविडेंड देती है या नहीं देती है। कई कंपनियों में तो लोग इसलिए सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि दे आर वेरी गुड डिविडेंड पेयर्स। तो डिविडेंड देती है या नहीं देती है वो भी हम देखते हैं। उसके अलावा मैंने प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड, इनके स्टेक के बारे में बात की। अगर इनका स्टेक या इनका हिस्सा कोई कंपनी में ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब दैट कंपनी इज ग्रोइंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, और उसमें हम भी अगर अपना हिस्सा बढ़ाएं तो वो अच्छा ही रहेगा, राइट। उसके बाद जो आता है कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स आते हैं,
जैसे कि आप जानते हैं, यू ऑल नो, आप में से ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से आर एस्टैब्लिश्ड विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? तो 50 ईएमए और 200 ईएमए का अगर आपने हमारे साथ ये कोर्स किए हैं हमारे टेक्निकल, तो भी ठीक है, नहीं कोर्स किए हैं तो भी आप जानते हैं 50 ईएमए और 200 ईएमए का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो 50 ईएमए और 200 ईएमए जो है, जिसको हम एक जो मैंने अपनी थियरी जो बनाई है उसके हिसाब से आर लाइक मदर एंड फादर सपोर्ट ऑफ अ कंपनी, एंड दे आर लाइक मदर एंड फादर if the price is below them, then these two lines, which are lines on the chart, imaginary lines, these two lines become major resistance if the price is below this line. और अगर प्राइस ये लाइन के ऊपर है तो these two lines become major support. तो पोजीशन ऑफ द स्टॉक और उसका जो है प्राइस ऑन द चार्ट above or below 50 EMA and 200 EMA is very important. तो ये क्राइटेरिया भी हम देखते हैं। फिर मूविंग एवरेजेस जो होती है उसका कन्वर्जेंस और उसका डाइवर्जेंस और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अगर ये MACD या RSI क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं वगैरह भी आपको सीखना है, जानना है, तो आप हमारे पास कोर्स कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने का, जिसकी बहुत नॉमिनल फीस है। और जो जो ये लोग ये कोर्स कर चुके हैं उनको पता है आज वो कैसे पहले ये कोर्स करने से पहले कैसे इन्वेस्टर थे और ये कोर्स करने के बाद वो कैसे इन्वेस्टर बन गए हैं, ये उनको एब्सोल्युटली दे नो। देयर यू विल फील अ रिमार्केबल डिफरेंस इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी इफ यू डू दिस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स विद अस। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं जब आप कोई कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तब। तो ऑब्वियस बात है कि जो हमने हैप्पी कैंडल्स नंबर जो कि अभी इन्वेंट करने का ट्राई किया है, हैप्पी कैंडल्स नंबर जिसके बारे में हमने ये वेबिनार रखा है, हैप्पी कैंडल्स नंबर जिसकी हम आज चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, we will obviously consider these aspects while we are discussing happy candles, while we are discussing wealth creation journey, right? तो ये सब चीजें जो अभी हमने पिछले पेज पे डिस्कस की, पिछली स्लाइड में यहाँ पे डिस्कस की, इसको हमने क्वांटिफाई किया है, इसको हमने कुछ नंबर्स दिए हैं और बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिराइव्ड अ हैप्पी कैंडल्स नंबर फॉर ईच कंपनी। अभी हमारा मैपिंग चालू है। हैप्पी कैंडल्स नंबर हमने ऑलरेडी डेजिग्नेट कर दिया है फॉर निफ्टी 50 कंपनीज, फिर स्मॉल कैप इंडेक्स और फिर मिड कैप पे हम धीरे धीरे जाएंगे और उसको भी जैसे ही अपडेट हो जाता है हम आपको बताएंगे। ओके, सो नाउ दिस हैप्पी कैंडल्स नंबर is derived by quantifying each of these important parameters. फिर making important selection criteria measurable will make the selection of the stock relatively easy process, right? अगर ये जो सारे क्राइटेरिया हमने इधर देखे और जिसके बारे में हमने बात की, अगर वो सब क्राइटेरिया को कुछ नंबर दे दिया जाए, उसको मेजर कर दिया जाए, तो फिर जो नंबर हमारे पास आएगा वो एक तरीके से एक हैप्पी कैंडल्स नंबर होगा जो के बताएगा कि भाई 100 में से इस स्टॉक को अभी कितने नंबर आज की डेट में मिल रहे हैं। एवरी डे दिस नंबर विल कीप चेंजिंग because the movement of the chart, movement हर एक रोज जो कैंडल बनती है तो उसके बेस पे ये नंबर भी चेंज होगा। तो ये नंबर का जो ट्रेंड है, कल 40 था, आज 45 हुआ, 50 हुआ, तो ये भी हमको एक स्टोरी कह देगा। इन एडिशन टू दैट कोई नंबर में अचानक 40 से 60 हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो भी हमको कुछ स्टोरी कह जाएगा। और इस तरह से हम लोग एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाएंगे कि इस कंपनी में
हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जब आप ये देखेंगे, हमने बैक टेस्ट भी किया है, हिस्टोरिकल डेटा पे भी ये नंबरों को हमने आजमा के देखा है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे आप ये नंबर के यूज टू होते जाएंगे, आपको इसका और मोर एंड मोर बेनिफिट पता चलता जाएगा। The higher the HCI number, the better it will be to invest in that company. और जैसे मैंने बताया कि ये नंबर भी चेंज होता रहेगा। आज कोई लो है, लो से ऊपर जा रहा है कोई स्टॉक, तो वो नंबर भी अपने आप ऊपर जाएगा। ऐसा हमारा डायनामिक अरेंजमेंट है। नाउ देखिए, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन हर एक इंडाइसेस का या एक नेचुरल प्रोसेस होता है, राइट। जैसे कि हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, एक्सपांशन भी होता है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन जैसे एक ह्यूमन बीइंग का होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स का होता है, वैसे ही जो इंडेक्स होती है उसका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो फेज अभी चल रहा है, और जो 1800 था तो उसका एक्सपांशन का फेज था। तब हमको ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के बीच में हमारा इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। अभी कॉन्ट्रैक्शन जो फेज है, जब आप एक्सपांशन हो रहा हो तब नया पैसा डालेंगे या तब नया पैसा डालते हैं तो उसके ग्रो करने की उम्मीद ज्यादा होगी, या अभी कॉन्ट्रैक्टेड है निफ्टी और अभी पैसा डाल देंगे तो उसके ग्रो करने की उम्मीद ज्यादा होगी। इट इज ऑब्वियस दैट the money that you have invested in the contraction phase will help you in your wealth creation journey. ये नहीं है कि भाई अभी आपने 15,700 आज निफ्टी है और आपने डाल दिया तो 14,500 या 15,000 जाने का कोई चांस नहीं है। जा सकता है, निफ्टी नीचे भी जा सकती है, बट एक साथ पूरा इन्वेस्टमेंट मत करो। दैट इज वाई वी से कि थोड़ा थोड़ा करके डालो। कोई भी एक स्टॉक आपको पसंद है, उसमें आप खरीदना चाहते हैं तो x/3 करके डालो, x/2 करके डालो। ये आप कई बार देखते होंगे इन मोस्ट ऑफ द मैसेजेस वी ट्राई टू प्रमोट और वी ट्राई टू प्रोजेक्ट इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, इन दिस काइंड ऑफ वेज वी ट्राई टू एक्सप्लेन, वी ट्राई टू टेल आवर कस्टमर्स एंड दोज हु आर एसोसिएटेड विद अस कि भाई आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करो। तो एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है, राइट। तो जब भी आपको लगे कि भाई ये बॉटम हो सकता है, उधर थोड़ा थोड़ा डालते जाओ। और फिर ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है, जब भी निफ्टी का एक्सपांशन फेज आएगा उस टाइम पे आपको बेनिफिट्स उसके मिलेंगे, उस टाइम पे आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में उसका बहुत फायदा होगा। दिस इज फॉर श्योर, बिकॉज निफ्टी के हम अभी जब ये खत्म हो जाएगा तो आप अगर बोलेंगे तो मैं चार्ट भी दिखा सकता हूँ। लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ निफ्टी लुक्स सेज दैट इंडिया इज अ कंटिन्यूअस बुल मार्केट। अभी सिर्फ 2% लोग इंडिया के निफ्टी में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है वो 2% का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 16 जब होगा और पैसा आएगा और पैसा खींचेगा। इंडिया में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, जिस तरह से IMF के प्रोजेक्शंस हैं, अभी जिस तरह के गवर्नमेंट के प्रोजेक्शंस हैं, आपने सुना होगा अभी पीयूष गोयल जी ने कहा था कि इन नेक्स्ट 30 years वी आर गोइंग टू बी अ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। राइट नाउ वी आर जस्ट अराउंड 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट। 3 ट्रिलियन के ऊपर थे, लेकिन अभी जो मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें हम 3 ट्रिलियन के नीचे आ गए हैं, लेकिन वो वापस जाना ही है, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना। लेकिन anyway the graph is going to go upwards only after this contraction phase of economy or of market or of indices is over. So I hope you have understood the concept of this happy candles number. अभी जैसे मैंने बताया था कहाँ से इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, या इफ यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन हैप्पी कैंडल्स नंबर तो कहाँ से आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो अबव 50 या 200 ये में है वो आप चार्ट पे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम,
डिविडेंड परसेंटेज या डिविडेंड यील्ड, डेब्ट, प्लेज, प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआई होल्डिंग, एमएफ होल्डिंग, कैश फ्लो, ये सब के बारे में आप जो है मनी कंट्रोल या ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एमएसीडी और आरएसआई है वो आपको चार्ट पे भी मिलेगा और आपको ये सब वेबसाइट्स पे भी मिल जाएगा। नाउ इन एडिशन टू दैट, और ये सबको हमने कुछ कुछ मार्क्स दिए हैं, किसी के 10, किसी के 5, किसी के 6, अपने हमारे इन हाउस एक्सपीरियंस और हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उसके हिसाब से। तो जो ओवरऑल जो है आउट ऑफ 100 मार्क्स जो हर एक कंपनी को दिए गए हैं, उसमें से जो वेटेज है वो फंडामेंटल्स को 53% है और टेक्निकल्स को 47% वेटेज हमने दिया है। कैसे, क्यों 53, क्यों 60 नहीं, या क्यों 47, क्यों 57 नहीं, ये एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, और जो हमने इन हाउस ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग मार्क्स अलग अलग परसेंटेज करके निकाले, उसके बाद हम ये फंडामेंटल 53 और टेक्निकल पे 47% वेटेज देने का हमने डिसाइड किया। और बैक टेस्ट करने पे हिस्टोरिकल डेटा पे हमको ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट वेटेज लगा, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत फायदा होगा। तो उसके बेस पे हमने ये नंबर और ये वेटेज सिलेक्ट किया है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी अच्छा कर रहा था। लास्ट वीक जब चालू हुआ तब रिलायंस का स्कोर था करीब 25 पॉइंट और इसमें ऊपर था, 54 और अराउंड 60 स्कोर था, जो कि अचानक जो ये गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट पे 12-13 रुपए का टैक्स लगाया, और फिर हो सकता है कि मुकेश भाई ने रिजाइन किया और जियो में आकाश को फ्लैगशिप दी है, तो 2-3 चीजों का मिक्स इम्पैक्ट हो सकता है। उसकी वजह से 59 में से एक वीक में ये स्कोर 34 हो गया, राइट। जैसे मैं बोल रहा था कि ये एक डायनामिक नंबर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखो, एट प्रेजेंट इट इज 74 HCI स्कोर पे। बाकी सब जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं उसका स्कोर आपके सामने है। ब्रिटानिया 58, हीरो 74, आइशर मोटर्स, ऑटो आप देखेंगे ऑटो काफी अच्छे जा रहे हैं। ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स की जो कंपनियां हैं उसका काफी अच्छा स्कोर आपको देखने मिलेगा। एफएमसीजी जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं, टॉप फास्ट मूविंग गुड्स है, जैसे कि आईटीसी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, वो भी बहुत अच्छा अभी इन्वेस्टमेंट करने लायक फेज में लग रही है, राइट। बैंकिंग और फार्मा के स्कोर्स आप ओवरऑल देखेंगे तो थोड़े कम आपको नजर आएंगे। तो ये जो टॉप 20 कंपनीज हैं, मैं ग्रुप में ये शेयर कर दूंगा, तो कुछ स्क्रीनशॉट या लेने की या लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसका पीडीएफ जो है ये प्रेजेंटेशन का आई विल शेयर इन द ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ बुकलेट 20, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो जस्ट आप ध्यान दीजिए बातों पे और रिलैक्स कीजिए। दिस डेटा विल बी शेयर्ड विद यू इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। फ्री ग्रुप में भी हम देंगे और जो कस्टमर ग्रुप है उसमें भी ये डेटा बुकलेट के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो बैंकिंग, जैसे मैंने बोला बैंकिंग है, आईटी है, उसमें थोड़ा सा मेटल है, उसमें थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है ओवरऑल, राइट। तो ये जो स्कोर हैं अभी वो आपके सामने हैं। और एक और बात मैं बोलूंगा इसके बाद कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट आर इन निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में है ये कंपनियां, मतलब इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, बराबर। आई होप यू एग्री विद। और इंडिया की टॉप कंपनीज हैं ये, तो इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी, राइट। बैंक्स जो हैं, प्राइवेट बैंक्स और कुछ गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं, एसबीआई वगैरह, वो भी एनपीए के चक्कर में से धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, राइट। तो उनके भी जो टॉप 3-4 प्राइवेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सिस, इंडसइंड, कोटक, आईसीआईसीआई,
HDFC। तो इनके अभी स्कोर बहुत लो है। जब एक जो इसमें HCI का स्कोर काफी लो कहीं पे दिख रहा है बहुत सारी जगह पे, जैसे कि विप्रो में 33 है, एक्सिस बैंक में इस पेज पे आप देखो तो 25 है, राइट, ONGC में 46 है, HDFC में 30 है। तो हम कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो स्कोर बहुत लो है, हो सकता है वो एक वैल्यू बाय भी हो उस टाइम पे, राइट। वैल्यू बाय का मतलब अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप 2 या 3 साल या 5 साल एक अच्छी कंपनी में अच्छा पैसा इन्वेस्ट करके उसको भूलने के लिए तैयार है, कभी मार्केट अप डाउन होता रहे, मैं 2 साल भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी देखो इन्फोसिस जब 49 है तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस लो होगी। HDFC जब 30 है तो ऑब्वियसली उसकी जो प्रीवियस हाइज है उससे प्राइस कम होगी। और ये कंपनियों का कुछ इतना बुरा अगले 10 साल में हो, यू कैन नॉट से एनीथिंग, बट एक लॉजिक ये कहता है कि दीज कंपनीज आर गोइंग टू स्ट्राइव, आर गोइंग टू ग्रो फर्दर इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। अल्ट्राटेक को क्या होने वाला है, अगर हमको अब जब बात की जा रही है कि भाई रियल एस्टेट बूम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम होगा, तो क्या अल्ट्राटेक का जो अभी प्राइस आपको 5,600 5,700 पे मिल रहा है, अल्ट्राटेक वहीं पे बैठा रहेगा, उसका सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो क्या अल्ट्राटेक आपको ये प्राइस पे मिलेगा? तो कई बार जो है, जो अगर कोई नंबर कम होना वो वैल्यू बाय भी हो सकता है। तो वैल्यू बाय जो है वो करके उसको कम प्राइस पे खरीद के आप एक लॉन्ग टर्म, थोड़ा अप डाउन मार्केट जाती है लेकिन 2 साल या 3 साल या 1.5 साल उसको भूलने के लिए तैयार है कि भाई ले लिया HDFC, ले लिया एक्सिस बैंक, ले लिया TCS या इन्फोसिस अभी या विप्रो ये प्राइस पे, और मैं 2 साल शांति से बैठ गया, तो भी ये चीज आपको एक वेल्थ क्रिएशन में काफी हेल्प कर सकती है। जो डार्क ग्रीन कलर में है 70 के ऊपर है, वो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और वो मोमेंटम में भी है। तो वो आपको हो सकता है कि 2-3-6 महीने में ही 10% रिटर्न दे दे। जो बहुत लो है, एक्सिस है या टाटा कंज्यूमर अभी इधर कम दिख रहा है, या इन्फोसिस कम दिख रहा है, HDFC कम दिख रहा है, तो हो सकता है आपका 6 महीने 7 महीने 8 महीने टाइम ले लें और उसमें 1 साल 2 साल में 10-15% आपको ग्रोथ दें। बट दीज कंपनीज कैन बिकम अ बिग एसेट फॉर यू इन अ लॉन्ग टर्म। तो नंबर अच्छा बड़ा नंबर होना है, हैप्पी कैंडल्स नंबर बड़ा होना इज अ ग्रेट थिंग, बट हैप्पी कैंडल्स नंबर जरूरत से भी ज्यादा छोटा होना ये भी है। अगर आप फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और टेक्निकली बिल्कुल ही लो स्कोर है उसका, तो दोज कंपनीज कैन ऑल्सो बी वैल्यू बाइज एट टाइम्स। और जो कंपनी अभी 25 है, कल 35 होगी, परसों 40 होगी, या एक हफ्ते बाद 40 होगी, तो उसका ग्राफ जिसका ऊपर जा रहा है, जिसका हैप्पी कैंडल्स नंबर ऊपर जा रहा है, वो कंपनी भी एक इन्वेस्टमेंट में, एक वेल्थ क्रिएशन में आपको काफी हेल्प कर पाएगी। गोइंग फर्दर, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे मैं बोल रहा था, राइट, TCS आप देख लो, L&T टेक सर्विसेज देख लो, टाटा मोटर्स देख लो, राइट। तो ये सब काफी अभी सस्ते में, काफी लो पी पे कंपेयर, हिस्टोरिकली कंपैरिजन करें तो बजाज फिनसर्व देखो, एशियन पेंट्स, मार्केट जब डाउन होता है तब ये कंपनियां काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल होती हैं। आप सिप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो शेयर, एक एक दो दो शेयर, एक एक दो दो शेयर करके भी अगर आप ये सब कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना अभी शुरू कर सकते हैं, तो दिस कैन हेल्प यू इन योर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी. So now coming to our open mic session, or you guys are free to ask me questions, and you can unmute and ask me questions regarding the subject, or regarding any other topics that you want to discuss regarding wealth creation.
Vishal bhai, just one question over here. As you were discussing about like the low score, uh, doesn't mean that it's not valuable, and it may be like the thing. So, are you talking about a Maybe the fair price? momentum is not good, but that So, does not mean कि भाई are you talking about the fair price, fair value of the stock or something like that? fair value. See, ideal situation will be not to buy stocks when they are very, very low. तो एक मिडल पाथ आपको पकड़ना पड़ेगा कि 20 या 25 या 30 पे जब है तो एक ट्रैकिंग क्वांटिटी में आपने एंट्री ले लेके रख दिया स्टॉक, और फिर जब 40 के ऊपर जाता है, 40 के ऊपर जा रही है और 50 की तरफ 60 की तरफ जा रही है, तो बाय द टाइम इट रीचेस 60, 65, 70, आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट करना था आपने सिप करके या आपने x/1, x/2, x/3 करके उसको पूरा इन्वेस्ट कर दिया उधर, तो दैट वुड बी द आइडियल सेटअप फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बहुत लो है तो ट्रैकिंग क्वांटिटी ले लो, समझो मुझको 1 लाख रुपए का टीसीएस लेना है या कोटक बैंक लेना है, या आप समझो 30,000 रुपए का कोटक बैंक लेना है, तो मैं 1 या 2 कोटक बैंक अभी के प्राइस पे भी लेके रख सकता हूँ। फिर जब उसका नंबर 40 के ऊपर चला जाए, 50 के ऊपर चला जाए, तो मैं x/1 एंट्री ले लिया। फिर जब 60 के ऊपर जाने लगे तो x/2 एंट्री ले लिया। तो दिस नंबर्स विल हेल्प यू in taking x/1, x/2, x/3 entries. I hope I made myself clear. Yes, sir. The only concern is, let's say, if I'm taking x1, x/2 or x/3 entry, तो मेरा purchase price is like as per the SIP is getting higher, right? If it's increasing, it's getting higher. तो मेरे को रिटर्न उतना नहीं मिलेगा. I mean, it will be somewhere close to 8% or 9%, depending upon that. तो मैं इन्फ्लेशन को या तो कहीं बीट नहीं कर पाऊंगा ना. I mean, the concept is basically to beat the bank saving interest, PF, PPF, and the thing inflation. तो वो किस ढंग से करें उसका? अच्छा, ये एक साथ आप अब 8-9% को स्टॉक मार्केट का निफ्टी 50 का, तो मैं जहां तक मैं समझता हूँ निफ्टी 50 का ये जो 50 स्टॉक अभी हमने देखे उसमें से कोई भी आप 5 स्टॉक में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर दोगे ना, तो आप बैंक रेट्स, इन्फ्लेशन और इसको तो आप आराम से बीट कर दोगे। तो ये जो है जब नंबर ऊपर जा रहा है या कोई 50 EMA के ऊपर गया, 200 EMA के ऊपर गया, तब आपने x/1, x/2 एंट्री की कोई स्टॉक में, तो मतलब आप मोमेंटम में एंट्री कर रहे हो, मतलब उसका प्राइस जब 2600 हुआ तो आपका एवरेज हमेशा उसके नीचे होगा, 2400 होगा। जब प्राइस 2700 हुआ और आपने एक्स बाय किया तो आपका प्राइस जो होगा वो हमेशा 2500 होगा। तो जो सेफ्टी बेल्ट आप हमेशा लगा के ऊपर चढ़ रहे हो, तो कभी मार्केट गिरा तो उस टाइम पे आप आपके कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट कर पाओगे, बिकॉज योर एवरेज प्राइस इज ऑलवेज will always be less than the market price in case of SIP investment, if you have done it at the right time, at the right technical and fundamental levels. For example, ये किस चीज से बचने के लिए है पुनीत, मैं आपको कुछ चार्ट दिखाता हूं कि जब आप समझो कि आपने 20 पे इन्वेस्ट कर दिया, ओके, जब 20 था तब इन्वेस्ट कर दिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है मालूम है, मैं आपको दिखाता हूं। जब कोई कंपनी का स्कोर बहुत लो है और आपने इन्वेस्ट कर दिया ना, तो कुछ ऐसा हो सकता है जैसा कई लोगों के साथ विप्रो के केस में हुआ था कि देखो विप्रो के केस में इधर ये इसका ओवरऑल तो समझो के 20 के नीचे था, जब इसने यहाँ पे एक 2000 की साल में पीक किया, 392 पर तक पहुंचा, और फिर 20 साल के बाद ये 392 तक पहुंचा, बराबर है। तो किसी ने लो स्कोर समझ के इधर इन्वेस्ट कर दिया था, तो उसको प्राइस अपने प्राइस तक आने में 20 साल लग गए।
सर एक्चुअली आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है, वो क्वेश्चंस और वही दिख रहा है। आई मीन चार्ट वगैरह कुछ दिख नहीं पा रहा जो आप दिखा रहे Okay, I will share again. हैं। Yeah. So this is the chart of Wipro. तो विप्रो आप देखो इधर 392 गया था 1 फरवरी 2000 में। तो समझो कि ये बहुत अच्छा इधर उसका नंबर रहा होगा, जो भी रहा होगा 70 60 जो भी रहा होगा। उसके बाद जब ये नीचे आने लगा और आप एग्जिट नहीं किए, और समझो किसी ने इधर जब 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया था, तब किसी ने एंट्री ले लिया कि यार ये तो बहुत अच्छे कंपनी थे जो 400 एक टाइम पे थी, आज मुझको ये शेयर 50 रुपए में मिल रहा है, राइट? तो इट इज गुड वैल्यू बाय। और 50 रुपए में निफ्टी, 50 रुपए में विप्रो इज अ गुड वैल्यू बाय। यू एग्री विथ मी? यस सर। तो 50 रुपए में विप्रो इसने गुड वैल्यू बाय लिया, फिर भी इसको 50 से 100 तक पहुंचने में, समझो इधर है वो 100 पे पहुंच गया था, वापस गिर गया, तो 100 150 200 तक पहुंचने में उसको कई साल लग गए, और 400 तक वापस आने में तो उसको 20 साल लग गए, राइट? तो व्हाट दिस ग्रोइंग नंबर जो 50 के ऊपर 60 के ऊपर 70 के ऊपर जब होगा, और उस टाइम पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो है विप्रो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो जब आप बढ़ते हुए नंबर में या बड़े नंबर में इन्वेस्ट करोगे तो एक मोमेंटम प्ले भी आपको मिल जाएगा, while it is a fundamentally strong company। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो देखना ही है, उसके साथ मोमेंटम में भी है, तो वो स्कोर ज्यादा बड़ा होगा। Got my point? This is how this company is going, this number is going to help you. It will be an additional help, एक एडिशनल अपने को माइंड में डेटा देगा। बाकी सब हम लोग देखने ही वाले हैं चार्ट वार्ट पे सब कुछ, लेकिन एक एडिशनल डेटा भी अपने को देगा। श्योर विशाल भाई, जस्ट एक क्वेश्चन, जैसे आप विप्रो की बात कर रहे हैं, तो मतलब न्यूज में और इन्वेस्टमेंट के उसमें काफी आता है। सपोजिंगली आपने 80s में विप्रो का शेयर खरीदा, 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, आज 40 साल बाद उसकी 1100 करोड़ रुपए वैल्यू है, जिसने उस टाइम पे 1 लाख लगा के भूल गया। तो वो किस ढंग से हुआ? व्हेन यू आर सेइंग कि वो 50 रुपए आ गया था, गिर गया, तो ये किस देखो ढंग से चार्ट बोल रहे हैं ना, ये चार्ट है आपके सामने, 400 रुपया विप्रो इधर था, उसके बाद इधर आया है, और ये जो है चार्ट, दिस इज एडजस्टेड फॉर ऑल द बोनसेस एंड एवरीथिंग दैट विप्रो वुड हैव डन इन दिस 20 years। स्टॉक स्प्लिट, बोनस, जो भी कुछ हुआ होगा, अगर हुआ है तो वो सब इसमें वो चार्ट में वो लोग एवरेज कर देते हैं। ओके, मतलब डिविडेंड हो गया और बोनस शेयर्स एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ये सब तो प्राइस उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ओके। तो 20 साल के बाद विप्रो उस लेवल पे आया जहां पे वो .com बबल के टाइम पे था। और ये भी उसमें याद रखना कि भाई वो तो साथ में एक FMCG भी, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं विप्रो के, तो उसके बावजूद ऐसा स्लम्प भी आ सकता है। तो हम ऐसे स्लम्प में न, भले टेक्निकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, लेकिन हम ऐसे स्लम्प में न फंस जाएं, उसके लिए हमको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि रिलायंस में भी हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। रिलायंस ओके, तो रिलायंस भी देखो इंडिया की टॉप कंपनी है, रिलायंस का कोई सान ही नहीं है, बराबर है, हर एक सेक्टर में वो है। फिर भी आप देखो ये 2004-5 के बाद क्या हुआ। ओके, तो ये इसने पीक किया था इधर, क्या है प्राइस, इधर 816 तक गया था ये जनवरी 2008 में। उसके बाद ये सब प्राइम क्राइसिस वाइसिस सब हो गया, तो ये 225 के करीब पहुंच गया रिलायंस। और उसके बाद ये 800 लेवल तक कब पहुंचा?
सीधा 2017-18 में। फर्दरमोर ये 500 तक पहुंच गया था इधर 596 580 के लेवल पे, और फिर ये 580 को क्रॉस कब कर पाया, तो सीधा 2017 में इधर आप अगर देखो, राइट, यू कैन सी हियर। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो है रिलायंस, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो है विप्रो, बट फिर भी उसमें राइट टाइम पे एंट्री लेने के लिए आपको टेक्निकल नंबर्स, टेक्निकल डेटा आपके पास होना जरूरी है। उसका हैप्पी कैंडल्स नंबर जो हैप्पी कैंडल स्कोर जो है वो थोड़ा हाई होना जरूरी है, या उसका बढ़ते रहना जरूरी है। तो जब हैप्पी कैंडल्स का स्कोर स्टेबल रहेगा तो आपका पैसा भी स्टेबल है, ऐसा समझ लो। हैप्पी कैंडल्स नंबर बढ़ रहा है कोई कंपनी का धीरे धीरे धीरे, तो आपका पैसा भी उसके साथ बढ़ेगा। ये सब क्राइटेरिया के हमने कुछ एनालिसिस करके ध्यान रखे हैं। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? Vishal sir, considering today's market and Nifty 50's fluctuation, what can be the approx expectation of Nifty 50 to go downside? You might have seen the charts that I have been giving. निफ्टी का कुछ मैंने चार्ट शेयर किया था शायद फ्राइडे को ही। तो ये जो है ये निफ्टी का चार्ट है। तो जो सपोर्ट जो है हमारे पास राइट नाउ वी आर एट 15,752, राइट। और यहां से अपने पास जो है जो नेक्स्ट सपोर्ट्स हैं वो है ये लाइन एक है 15,518। अगर ये भी नीचे टूटता है नीचे जाता है तो 15,180 से लेके 1550 से लेके 15,180 तक का एक सपोर्ट जोन है ये वाला, ओके। 15,038 से 15,176 या 15,180 ये एक सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे जाती है निफ्टी तो 14,485। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि निफ्टी यहां तक वापस आएगी या आ सकती है या आने के चांसेस हैं 14,500। आप अगर न्यूज देखते हो, अगर आप कोई मनी कंट्रोल, टाइम्स नाउ, ईटी नाउ ये सब देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि भाई 14,500 विल बी द राइट लेवल where buying in Nifty will come और FIIs will come back in a huge number। तो ये सब कहा जाता है स्पेकुलेशन है। हमको ये देखना है कि भाई हो सकता है 15,050 से ही रिटर्न हो जाए निफ्टी और ऊपर जाने लगे। तो दीज आर द लेवल्स अप टू विच निफ्टी कैन फॉल। जो मैक्सिमम में मैक्सिमम मुझे यहाँ पे डाउन साइड दिखता है वो है 15,050 के नीचे अगर गई निफ्टी तो जरूर फिर उसको 14,500 तक आने में कोई रोक नहीं पाएगा। 14,500 14,600 की रेंज में। और अगर 14,600 के भी नीचे जाती है तो एक 13,656 का जो एक लेवल है वहां तक जो है निफ्टी आ सकती है। तो या यहाँ से रिवर्स होगी या उसके ऊपर ये जो लेवल है यहाँ से रिवर्स होगी, या ऐसा कह सकते हैं कि निफ्टी यहाँ से या ये लेवल से एक बार टच होके फिर रिवर्स हो चुकी है, ये भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट क्या होगा ये मतलब तो कोई ज्योतिष ही बता पाएगा, और मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ। एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम मैंने पहले ही बताया कि बताना मुश्किल होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट टॉप्स, बट वी नो द लेवल्स कि अगर इसके नीचे गई तो फिर ये 15,500 के नीचे गई तो 15,150, 15,150 के नीचे गई तो 15,050, उसके नीचे गई तो 14,500 के आजू बाजू, और उसके नीचे फिर मेगा मेगा इधर बहुत सारे सपोर्ट है। ये जो जोन है 14,500 14,800 जो है ना उसके नीचे हर एक 100 पॉइंट पे
एक मेजर 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 सपोर्ट है। तो 14,500 को तोड़ के नीचे जाना भी बहुत मुश्किल है, उतना ही मुश्किल जितना 18,500 को तोड़ के निफ्टी के लिए 19,000 तरफ जाना जितना मुश्किल था उस टाइम पे। उसने बहुत कोशिश की, अगर यहाँ पे आप देखो तो 1 2 3 4 बार 5 6 बार महीने तक कोशिश करती रही और फिर वो नीचे स्लम्प आया। उतना ही मुश्किल 14,500 के लेवल को तोड़ना है। बट क्या 14,500 तक जाएगा, ये वी कैन नॉट से फॉर श्योर। हो सकता है यहाँ से रिटर्न हो चुकी है, हो सकता है 50 थोड़ी देर और यहाँ पे स्पेंड करके फिर ऊपर जाएगी, और हो सकता है थोड़ा एक और डीप लगा के फिर ऊपर चलने लगे। बट ऊपर चलना तय है। ऊपर चलना किस लिए तय है, अभी मैं ये थोड़ा डिलीट करूंगा ये जो ड्राइंग्स है, और मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर चलना किस लिए तय है। क्योंकि आप देखो निफ्टी इज अ कंटिन्यूअस बुल मार्केट। ये जो अप ट्रेंड में रही हुई है, 2 मेजर या 3 मेजर डेंट आपको निफ्टी में दिखेंगे। ये जो है वो सब प्राइम क्राइसिस जो यूएस में हुआ था तब एक स्लम्प आया था, उसके बाद यहाँ पे कोविड-19 का जो मेजर स्लम्प आया है उसके बाद निफ्टी चलती रहती है ऊपर। अभी जो है वो यूक्रेन वॉर की वजह से थोड़ा रुका हुआ है। यहाँ पे स्लम्प भी नहीं बोल सकते, स्लम्प ऐसे होता है कि ये कैसे गिरा, ये स्लम्प बोलते हैं। ये कैसे गिरा, ये स्लम्प बोलते हैं। ये तो कहा जाएगा कि भाई एक कर्वेचर बना रहा है, एक रुका हुआ है यहाँ पे निफ्टी, राइट। हाँ, बट सब्सटेंशियली रुका हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ये वापस गाड़ी चलने लगी तो ये कहां तक जाएगी इसका भी मैं एक आपको अंदाजा दे देता हूं, आपने क्वेश्चन किया है तो। ये जो चैनल है, ये चैनल इस तरह से है ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। ये देखो यहाँ पे इसने चैनल का टॉप बनाया था, यहाँ पे चैनल टॉप बनाया था, फिर ये मिड लाइन पे जाके थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। जितना टाइम ये इधर स्पेंड करेगी नीचे, जब ऊपर जाएगी तो आप अगला चैनल टॉप करीब करीब 2024 में 22,000 या 23,000 के बीच में पाएंगे, ये मेरा अंदाजा है। तो ये स्लम्प है, मुश्किल है, सबके पोर्टफोलियो डाउन है, एवरीबॉडी इज ब्लीडिंग, बट दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट बुल रन। एजुकेट योरसेल्फ, नया नया सीखो, इन्वेस्टमेंट के बारे में बुक्स पढ़ो, कुछ वेबिनार अटेंड करो, कुछ कोर्सेस करो, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द नेक्स्ट बुल रन। ये बोलते हैं कि खेती जब हम करते हैं तो एक फसल बोने का टाइम होता है और एक फसल काटने का टाइम होता है। तो अभी फसल बोने का टाइम है, नॉलेज बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, और खास करके आप जो कहाँ पे इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना, इस पे फोकस करो, तो मेरे ख्याल से आपको काफी फायदा मिलेगा। एनी Thank मोर you, sir. क्वेश्चंस गाइस? विशाल भाई, just one question. As we were discussing के सारे experts कह रहे हैं कि शायद 14,500 तक जाए। तो now DIIs are there, FIIs, if they are pulling the money from the market, that means they do not have that much of what you say trust in Indian market, right? So I mean, how much impact or probably let's say अगर पूरा इंडिया ही इन्वेस्ट करना लग जाए यहाँ पे, as we are saying we are just 4%, 6% of people who are investing right Not now. 6%, 4%. 4% are investing right now. So how much of an impact can it have on this market? Like अगर हम FIIs को हटा ही दें and everyone starts investing, या FIIs फिर को हटाना FIIs का बहुत कितना मुश्किल है। कितना वो है? FIIs को हटाना बहुत मुश्किल है। अभी आप अगर निफ्टी का पीई देखो ना, तो निफ्टी का पीई जो है पिछले 2016 में जो लेवल पे था 20 के नीचे गया था, 19 पॉइंट समथिंग था। मैंने लास्ट जब वेबिनार किया था या कुछ डेटा आपके साथ शेयर भी किया होगा, तो 2016 में जो गया था
उस टाइम पे FII बाहर गए थे, फिर 2017 के करीब वो लोग वापिस आए, तो कंटिन्यूअसली 3-4 साल रहे हैं अपने मार्केट में। तो उधर से जो 18-19 पे पी था, उधर से पी 32-33 पे चला गया था, जब मार्केट 18,300, 400, 600 के लेवल पे थी। तो कहाँ 18-20 और कहाँ 32-33, तो उसके बीच का जो ये करेक्शन का फेज होता है, वहां पे FII पैसा पुल करती है, और पैसा पुल करती है तो इसमें इंडिया में पैसा नहीं लगाना, ये सब नहीं होता है। आप देखो चाइना में से कितना FII ने पैसा निकाल लिया है, आप देखो ब्राजील की मार्केट में से कितना निकाल लिया है, आप देखो यूरोप की मार्केट में से कितना पैसा FII ने निकाल दिया है। ये डेटा कंपेयर करेंगे ना, तो इंडिया की मार्केट में से अभी कुछ पैसा निकला नहीं है, या FII ने निकाला नहीं है, ये आपको पता चलेगा। पॉइंट नंबर 2 इज के FII अभी जो जितना निकला है ना, उससे भी काफी 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 ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो FII को टक्कर दे सकें, या FII को हम बीट कर सकें, या FII बेचते रहे फिर भी हम इतना माल खरीदे कि मार्केट ऊपर जाने लगे, ये फिलहाल में मुश्किल है, क्योंकि हम सिर्फ 4% रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन जब बढ़ेगा तो प्रोबेबली दिस माइट बी पॉसिबल, बट आज की डेट में वो मुझे मुश्किल लगता है कि FII बेचता रहे और फिर भी मार्केट ऊपर जाए। इतना ज्यादा पैसा DII कर सकती है, उनके डीप पॉकेट्स हैं, लेकिन रिटेल के आ जाने से, क्योंकि हम तो 5, 10, 25 शेयर खरीदते हैं ना, जो FII होता है वो फ्यूचर्स का लॉट लेता है, DII जो होता है वो बल्क में परचेस कर लेता है कि भाई 5% आपके कंपनी के शेयर्स में खरीदता हूँ। तो FII रिटेल इन्वेस्टर जो है वो उस लेवल पे पहुंचना काफी मुश्किल है। और जो मैसिव इकोनॉमीज हैं, अभी तो इंडिया शायद 5वें या 6ठे नंबर की इकोनॉमी है वर्ल्ड में, लेकिन हमसे आगे जो है, जैसे कि US की हम बात करें, तो US जो है वो मेरे ख्याल से उसकी 52% पॉपुलेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 52% पॉपुलेशन ऑफ US इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हाँ, ये लेवल पे अगर हम पहुंचे किसी दिन, 52% US के कंपैरिजन में अगर 20-25% भी इंडिया की पॉपुलेशन इन्वेस्ट करने लगे, तो शायद हो सकता है कभी कि हम वी वुड नॉट केयर अबाउट FII इन्वेस्टमेंट, बट अभी की डेट में तो वो नहीं है ऐसा। मैं आपकी झूठी तसल्ली तो नहीं दे सकता, वो स्टेज पे इंडियन इकोनॉमी को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। It was a good question. I tried my best to answer it. Sure, sir. Sure. Thank you. And I tried to answer it honestly. मैं कुछ रोजी पिक्चर आपके सामने पेंट कर सकता था, बट FII का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अलग चीज है, और फॉरेन कंपनियों का इंडिया में अलग इन्वेस्ट करना अलग चीज है। ओके, सो लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग इन इंडिया। हो सकता है मार्केट में इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं हो रहा हो, तो उससे आप कंफ्यूज मत करना, राइट? इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत बूम हो रही है, बहुत बूम होने वाली है। ये 1-2 जो छोटे बड़े प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए उसके बाद, और इंडिया में बहुत पैसा फॉरेन से आ रहा है, और भी ज्यादा आना चाहिए था, वो कुछ रीजंस की वजह से नहीं आ सका, बट पैसा तो बहुत आ रहा है। तो फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इंडिया अलग चीज है, और FII विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट अलग चीज है। तो ये दोनों को आप मिक्स भी मत करना कभी। Okay guys, I think that was a good webinar. I can take one more question if it is there, or we can end the program over here. I hope that I am able to explain you something about Happy Candles number, and we have overall investment criteria and scenario.
स्लाइड्स के बाद मैं पेपर को एंड कर दूंगी, ओके? लाइक के साथ साथ बहन को भी लाइक कर लेना। हेलो तो पता चला मेरी फैमिली कैसी है। Okay, guys. So we will end the program over here, and I hope that I will also put the link on the YouTube very soon. और ये जो हमने डिस्कस किया, मैं इसका एक PDF वर्जन बना के भी आपको शेयर करूंगा, ताकि आपको अभी जो हैप्पी कैंडल्स नंबर क्या है निफ्टी के 50 कंपनी का, वो आपको मिल जाए। हो सकता है हम हर हफ्ते निफ्टी 50 के जो नंबर्स हैं वो अपडेट करके भी आपको दें। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इवॉल्व द सिस्टम, सो लेट अस सी हाउ इट गोज फ्रॉम हियर। Okay, guys, good night and see you later. You can post your comments about how the webinar was in your respective groups. Thank you, Vishal bhai. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Bye.